शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिलिटेंसी के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर पाकिस्तानी पत्रकार को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया था कि भारत कब तक आतंकवाद को समर्थन करता रहेगा। एस जयशंकर ने पत्रकार से कहा कि यह सवाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि वो कब तक मिलिटेंसी की हिमायत करते रहेंगे। एस जयशंकर ने कहा कि एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करे। इसी दौरान हिना रबानी के बयान पर भी विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया की। Mr. Minister, I'm from Geo TV Pakistan. If you would like to entertain my question also. Okay. How about Kulbhushan, first of all, and India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought out this. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? Thank you. You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. I read the reports on what Minister Hina Rabani Khar said. And, I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad. And Hina Rabani Khar was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies which they do. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान 9/11 और 26/11 आतंकी हमलों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर नाम लिए बगैर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। This council is well aware that terrorism is an existential threat to international peace and security. It knows no borders, nationality or race, and is a challenge that the international community must combat collectively. India faced the horrors of cross-border terrorism long before the world took serious note of it. Over the decades, we lost thousands of innocent civilian lives, but we fought terrorism resolutely, bravely, and with a zero-tolerance approach, because the threat of terrorism has actually become even more serious. We have seen the expansion of Al-Qaeda, Daesh,
Boko Haram, and Al-Shabaab and their affiliates. At the other end of the spectrum are lone wolf attacks inspired by online radicalization and biases. But somewhere in all of this, we cannot forget that old habits and established networks are still alive, especially in South Asia. The contemporary epicenter of terrorism remains very much active, whatever gloss may be applied to minimize unpleasant realities. Let me conclude by emphasizing that we cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. In the last 2 decades, terrorism has been significantly countered and its justification delegitimized. But this remains work in progress. Combating terrorism is a battle in which there is no respite. The world cannot afford attention deficits or tactical compromises. It is most of all for the Security Council to lead the global response in this regard. तवांग में झड़प के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ जवानों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एलएसी पर भारतीय सेना अलर्ट मोड पे है और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो बीएसएफ भी अलर्ट मोड पे है और पाकिस्तान पर ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वक्त हम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और नेटवर्क 18 की टीम आज बीएसएफ के पेट्रोलिंग का हिस्सा बनी है और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए ये अलर्ट है। और अगर हम उस हिस्से की बात करें, उस पार की बात करें तो यहीं से कई बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे हथियारों की तस्करी की बात हो, चाहे टनल की बात हो। तो ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है सांबा सेक्टर का और लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि यहाँ से घुसपैठ की जाए, ड्रोन भेजा जाए और बीएसएफ के जवान जहाँ पर अलर्ट मोड पे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बीएसएफ के जवानों की तरफ से जो है वो पेट्रोलिंग की जा रही है और अलर्ट जवानों की तरफ से और पाकिस्तान की जितनी भी कोशिश है बॉर्डर पर उन पर नज़र रखी जा रही है। हमारे साथ जवान यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जहाँ पे हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार पेट्रोलिंग इनकी जारी है। और कड़ाके की ठंड इस वक्त की बात करें तो यहाँ पे पड़ रही है और कड़ाके की ठंड में ये जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर, किस तरह का चैलेंज रहता है अगर हम बात करें बॉर्डर पर आपके लिए? बॉर्डर पर चैलेंज मौसम जैसे चेंज होता है उसके साथ साथ हमारा ड्यूटी ऑल टाइम 24 घंटा चलता है इधर। जैसे हर तरफ रात को दिन को पेट्रोलिंग लेके ड्यूटी लेके पूरा हम 24 घंटे तैयार है। ड्रोन वाली साजिश को किस तरह आप देखते हैं, पाकिस्तान की कोशिश रहती है करने? उसके लिए तो सर हम 24 घंटा तैयारी है देखने के लिए, चेक करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीएसएफ के जवान जिनका साफ तौर पे कहना था कि पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और बीएसएफ के जवान उसके लिए अलर्ट हैं। और बॉर्डर पर अगर हम बात करें सांबा सेक्टर की तो बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा से मैं श्याम सुंदर। जिले रामबन में भारतीय रेलवे के सबसे बड़े रेलवे टनल के साथ निर्माण की गई एस्केप टनल को मुकम्मल करके उतरी रेलवे ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। कल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के कटरा बनिहाल सेक्शन पर खड़ी रेलवे स्टेशनों के दरमियान टनल नंबर 49 की 13 किलोमीटर लंबी टनल को पूरा किया गया। मेन टनल और इसके एस्केप टनल जैसे किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय के मुताबिक तैयार किया गया है और इस दौरान रेलवे और कंपनियों को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बीरवा के जरमौजूर इलाके में पीने के पानी की भारी किल्लत है। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस इलाके में पीने के पानी की समस्या है। लोगों का कहना है कि कई बार इस सिलसिले में विभाग को आग्रह किया गया पर समस्या जो कि तू है। जरमौजरा के लोगों ने प्रशासन से अपील की कि जल्द पीने के साफ पानी का इंतजाम किया जाए।
आब कहें पे 15 दह पे आब कहें 10 दुहन त्रावान आब रेतस गसान बी गाब पाइप फुट हश मज खानदार सह गो मुलतवी अथ पे पाइप आब कहें और कतर गुपन त्रेश लेटरिन आब कुन कतर कहें लजा नार आब कतर बना कुन पे दुत बिस्तर तिम पे भरत वट दिस अद कोर तुम आब कहें बुझ सारी पन पन फायदे तुलान तती पथ खोर अलाक बुझ ती ये ड्रेन ना आब कहें सह लोच गई परेशान दिवान क्रैक बचो पेट पक खुदायस पत तुह कुन आब कतर क्या करो दजाया महल। प्रशासन गांव की ओर के तहत प्रभारी अफसर डॉक्टर जे नित्तू, जो कि सेक्रेटरी जल शक्ति भी हैं, डीएचपुरा का दौरा किया। इस मौके पर एसडीएम दमहाल हाजीपोरा बशीरुल हसन ने ऑफिसर को पंचायत हलके के हवाले से जानकारी फराहम की, जबकि उन्होंने इलाके की तामीराती कामों का भी खाका पेश किया। इस दौरान महकमे जल शक्ति के आला अफसरान भी मौजूद थे। मोहम्मदपुरा कुलगाम में देर शाम आग की एक घटना हुई। इसमें मोहम्मद यूसुफ भट्ट का गांव खाना भी जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेडर और स्थानीय लोगों की समय पर कार्रवाई की वजह से आग को फैलने से रोका गया और एक बड़े हादसे को भी टाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारण का भी पता लगाया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस सांबा में प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार की तरफ से जारी करदा आंगनवाड़ी वर्करों के लिए एचआर पॉलिसी के खिलाफ नाराजगी जताई। इस सिलसिले में आंगनवाड़ी वर्करों ने डीसी सांबा को एक ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये एचआर पॉलिसी के विरोध में है, क्योंकि सरकार ने 30 नवंबर को एक एचआर पॉलिसी लागू की है जिसमें उन्होंने हमारी 60 साल की जो आंगनवाड़ी वर्कर बहनें, हेल्पर बहनें हैं, उनको रिटायर करने का सोचा है। लेकिन हम इस ऑर्डर के विरोध में हैं, क्योंकि इस ऑर्डर में ना तो सरकार ने पूरी जो हमें साफ तरीके से इसको क्लियर किया है, क्योंकि उसमें ना तो हमारी सैलरी का उन्होंने मेंशन किया है, ना ही हमारी रिटायरमेंट का कोई मेंशन किया है। उन्होंने गोलमोल ऑर्डर निकाल के हमारे हाथों में दे दिया हुआ है। लेकिन हम इस एचआर पॉलिसी का विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें हैं वो 40 साल से 35 साल से इस डिपार्टमेंट में सर्विस दे रही हैं और हमारे नेबरिंग स्टेट जो है वो अच्छी ऑनरेरियम दे रहे हैं और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमें क्या देती है, मात्र 600 रुपया। और इस 600 रुपये से क्या हमारी जो वर्कर बहनें हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें हैं, क्या वो अपने घर का गुजारा चला सकेंगी? तो हम चाहते हैं कि हमने सरकार से 5 साल 6 साल हो गए हम कह रहे हैं कि हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। अच्छी रिटायरमेंट पॉलिसी बनाओ ताकि हम भी आपके ऑर्डर का वेलकम करें, क्योंकि अगर जाती है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहन घर जाती है तो उसको वापसी के ऊपर। जिला प्रशासन रामबन ने जिला में सुविधा ऐप पर ई नौजवान कारोबारियों की दिलचस्पी बढ़ाने के साथ साथ ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन गांव की ओर के तहत एक दिवसीय यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने यूथ कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसमें पॉलिटेक्निक रामबन, ITI रामबन, गूल और बनिहाल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के ट्रेनी और जिला भर से युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर कई योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। हमने रामबन अपने DACR में एक यूथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हम इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर प्रशासन गांव की ओर वाला, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आर यूथ बिलोंग टू रूरल एरियाज। तो उनको हमने यहाँ बुलाया था, टारगेटिंग दी स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड ITIs एंड यूथ ड्रॉन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। बेसिक आइडिया ये था कि उनको उनके करियर के बारे में, करियर चॉइसेस के बारे में थोड़ा सा सेंसिटाइज करें। रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ के बच्चों में कोर कॉम्पिटेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए भी हमें उन्हें इंस्पायर किया। उनकी डिमांड ये थी कि
District Ramban should organize certain career counseling sessions in various institutions. फिर से आपका स्वागत करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बांडीपुरा में हाल ही में मुंतखब हुई हाजन ए की डीडीसी मेंबर नाजिया बानू को एक समारोह में पद की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन और तमाम डीडीसी मेंबर्स मौजूद थे। नाजिया बानू को डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने शपथ दिलाई। शपथ समारोह के बाद पंचायती चुनाव के हवाले से स्पेशल समरी रिवीजन पर बैठक हुई। इस दौरान पंचायती कर्मचारियों को नए वोटर्स के रजिस्ट्री और दूसरे कार्यों के हवाले से निर्देश दिए गए। मैं तोर आज हलफ यम मसल में इलाकस मन पानस योत इलाकस मन कहें बल्कि 9 हलकन मन में वारिया मसाइल लोकन वारिया तवक़त मे सतन मे पे यमो न ओत्र वोट त्रो कहें तमन तमो त्रो तमन त बस सारन शुक्र गुजार यम काम कर। आज जो हमारी मीटिंग थी वो जो स्पेशल समरी रिवीजन जो कि पंचायत इलेक्टोरल रोल्स के लिए की जा रही है उसके बारे में थी। हमारे जितने भी वोटर्स हैं जो कि पंचायत इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं उनका एक अपना पंचायत इलेक्टोरल रोल होता है, जिसमें ज़रूरी है कि जो एडिशंस हैं वो टाइमली की जाएं। जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो एलिजिबल वोटर हैं, उनका नाम उसमें दर्ज हो ताकि वो अपना वोट दे सके। तो इसके लिए जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन है वो किया जा रहा है। जनरली जो हमारे VLWs हैं या जो विलेज लेवल जो हमारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो इसके लिए वो डेजिग्नेटेड रहते हैं जो कि ये डिटेल्स भरते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लेते हैं। मेरी गुजारिश है जितने भी लोग हमारे जो पंचायत में रहने वाले हैं, जो इन वार्ड्स में रहते हैं, पंचायत की वार्ड में रहते हैं, जिनको एक जो एलिजिबल वोटर्स है जो वोट दे सकते हैं पंचायत इलेक्शंस में, वो ज़रूर अपना नाम इसमें दर्ज करवाएं। करगिल जिले में दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। खासकर करगिल के बड़े बाजार में तो लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए करगिल की ट्रैफिक पुलिस हमेशा चौकस रहती है। इसके बावजूद लोग गलत पार्किंग करते हैं, जिससे हर आने जाने वाले को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रूल न मानने पर ट्रैफिक पुलिस को मजबूरन चालान करना पड़ता है। कई लोगों को शिकायत है कि पुलिस गैर जरूरी चालान कर रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए ट्रैफिक अहदेदार ने बताया कि किसी का चालान गैर जरूरी नहीं किया जा रहा है। देखिए, हमारे पास पार्किंग स्पेस तो टाउन में उतना है नहीं है। 2 जगह आइडेंटिफाइड है, एक हुसैनी पार्क, एक ओल्ड टैक्सी स्टैंड। इस वजह से लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा चालान कर रहे हैं, लेकिन हम रॉन्ग पार्किंग बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो भी 20 मिनट से ज़्यादा गाड़ी पार्क करके चला जाएगा उसको हम चालान कर रहे हैं। उस पर हम स्टिकर चालान लगा रहे हैं, जिसको हम बाद में कंपाउंड में कन्वर्ट करके डिस्पोज ऑफ करते हैं। हम सिर्फ वायलेटर्स को चालान करते हैं। अगर यहाँ हम चालान करने बैठे, पहले हम गाड़ी को देखते हैं। किसी भी गाड़ी में हमें लगा कि ये वायलेशन कर रहा है, नंबर प्लेट नहीं होगा, है सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा, विदाउट सीट बेल्ट होगा, हम उन्हीं गाड़ियों को रोकते हैं और उसके बाद उनको चालान करते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो रॉन्ग पार्किंग ना करें। अगर कुछ सामान लेना हो 10 मिनट के लिए रोक के फिर निकल जाएं। लोग ऐसा करते हैं, उनको जगह मिलता है, वो गाड़ी खड़ी करते हैं, सुबह फिर शाम को निकलते हैं, और जिसको एक्चुअल में 10 मिनट रुक के सामान लेना है उसको फिर डबल लाइन में पार्किंग करना पड़ता है। इस वजह से ट्रैफिक रेगुलेशन में हमें प्रॉब्लम आती है। ट्रैफिक नॉर्मली फ्लो में मूवमेंट नहीं कर पाती है। इसलिए हम रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ बिल्कुल ड्राइव कर रहे हैं। स्टिकर चालान हम पेश करते हैं हर गाड़ी पे जो रॉन्गली पार्क्ड होता है, उसको बाद में हम कन्वर्ट करके डिस्पोज ऑफ करते हैं। ई चालान अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इन कमिंग डेज हम ई चालान भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमारे पास आया था, लेकिन नेटवर्क की इशू की वजह से ई चालान हो नहीं पाया था। अब नेटवर्क बेहतर है तो हम जल्दी से ई चालान स्टार्ट कर लेंगे। मैं आप लोगों की मीडियम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो हम स्टिकर चालान पेश करते हैं, कुछ लोग तो आते हैं, आके अपना चालान डिस्पोज ऑफ करके कन्वर्ट करा के फ़ाइन दे के चले जाते हैं। कुछ लोग आते नहीं हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ हम ARTO को लिख रहे हैं और वो सारी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। तो मैं उनको दोबारा अपील करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं आए हैं अभी भी आएँ, अपना स्टिकर चालान कन्वर्ट करा के कंपाउंड में कन्वर्ट करा के डिस्पोज ऑफ कर दें। जिला लेह में जारी 4 दिवसीय इंटर हाई स्कूल इंडोर टूर्नामेंट का मल्टीपर्पज
इंडोर हॉल NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समापन हुआ। इस टूर्नामेंट का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ यूथ और खेल विभाग ने किया था। सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लद्दाख रविंदर कुमार मुख्य अतिथि थे। 12 दिसंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में लेह जिले के अलग अलग हिस्सों से 20 हाई स्कूल की टीमों ने भाग लिया। इसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शतरंज जैसे खेलों के मुकाबले हुए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने टूर्नामेंट में विजेताओं को पुरस्कार दिए। इंटर स्कूल टूर्नामेंट किया गया ले डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स का, और इसमें इंडोर टूर्नामेंट था। ये इसमें बैडमिंटन है, इसमें टेबल टेनिस है या चेस है, और बाकी जो गेम्स है वो किए गए। और कोविड के बाद में ये पहला टूर्नामेंट है जिसमें इंडोर टूर्नामेंट और ओपन टूर्नामेंट इस टाइप से हम करवा रहे हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स का भी एक्सपोजर मिले, और बच्चों को जो उसमें क्वालिटीज़ हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों में आती हैं तो उसको बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें बच्चों ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और बच्चों के लिए एक अलग से एक नया एक्सपीरियंस था इंडोर स्टेडियम में खेलना। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाए और स्कूल में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि बच्चों को फिट भी रखा जा सके और बच्चों को अच्छा प्लेयर बनाया जा सके। यहाँ से जो नेशनल लेवल पे भी गेम्स होते हैं हमारे, लेकिन वो फिर जब गेम्स होंगे तो उसके हिसाब से उनको मतलब हम भेज सकते हैं, जो SGFI गेम्स बोलते हैं हम जिनको, तो उसमें हम भेज सकते हैं। लेकिन अभी मैं यही देख रहा था कि अभी बच्चों को ट्रेनिंग का काफ़ी ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जो एसोसिएशंस हैं हमारी, ख़ास तौर से चाहे वो बैडमिंटन हो या टेबल टेनिस हो, उनको भी काफ़ी काम करना पड़ेगा अभी, जिससे कि बच्चों का जो बेसिक्स है या ट्रेनिंग है उसको पूरा किया जा सके, और एक ये रेगुलर ट्रेन कर सकें बच्चे। इंस्टेड ऑफ एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया तो कोशिश होगा कि जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं उनको हम रेगुलर एक प्लेटफॉर्म दे सकें। मुझे लगता है क्योंकि हर प्लेयर, हर जो बच्चा है वो हर गेम को नहीं खेल सकता। तो किसी बच्चे का इंटरेस्ट चेस में होगा, किसी का बैडमिंटन में होगा, किसी का टेबल टेनिस में, किसी का आइस हॉकी में। तो हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग है, हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग है। तो उसी हिसाब से अगर हम ज़्यादा मौके देंगे बच्चों को तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिलासपुर में ACC सीमेंट फैक्ट्री बंद नहीं होगी और कोई भी बेघर नहीं होगा। सुक्खू ने यह भी कहा कि हमारी सरकार में और भी घर बनेंगे। बिलासपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री बंद होगी सर, उसको क्या कहेंगे? काफी लोग बेघर हो गए। नहीं, कोई सीमेंट फैक्ट्री बंद नहीं होगी, ना कोई बेघर होगा। हमारी सरकार में सबको घर मिलेगा। सर पल की नजर रख रहे हैं आप? मेरे पास हर घंटे रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत देने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री हिमाचल, साफ तौर पे कह रहे हैं कोई बेघर नहीं होगा, हर पल की खबर हम रख रहे हैं। देखते हैं हिमाचल में किस तरीके से ये सीमेंट फैक्ट्री बंद होती है, उसके बाद एम्प्लॉयज का क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। बिलासपुर में SCC सीमेंट प्लांट के बंद होने के मामले में चीफ सेक्रेटरी RD धीमान ने कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी के दरमियान माल भाड़े को लेकर विवाद है। बिलासपुर और सोलन के DC को कंपनी के साथ मीटिंग करने को कहा गया।